Hello everyone, here Dr. Shah. Welcome to Dr. MDS Academy. Welcome to third part of radiation chapter. In this lecture, we are going to see and understand how we can calculate the safe factors for the different geometry cases. Then after, we will apply this for the case of finding out the interchange factor, which is also known as gray body factor 1 to g. G means gray body factor for the different cases. Okay, what is the different formulas? Then after then after we will be calculating what is the irradiation and radiosity. Okay, and how we can calculate the surface resistance and space resistance, especially when we are having two parallel plates. Okay, 1 and 2. Okay, so what are the different resistance axes? This is our surface resistance and this is our space resistance, and third is will be our again surface resistance for second body. So based on all these topics, I am going to solve you some of the previous year critical questions. So let's begin from question number 1. Consider the radiation heat exchange inside an annulus between two very long concentric cylinders. Okay, we are having two cylinders, two concentric cylinder. One is this one. Okay, one this one, and another the radius of the outer cylinder is r0 and that of the inner cylinder is ri. What is the radius? Inner ri. Another cylinder we are having of what? This is our outer cylinder. Okay, the two concentric cylinders we are having. Okay, so this is having a radius how much? This is how much given? This is given is r0 is the outermost radius and that of the inner radius is ri. Okay, the radiation view factor of the outer cylinder onto itself is, okay, चलो इसे कंसिडर करते हैं इनर वाला को. दिस इज आवर टू, टू बॉडी, and suppose this is inside is our second body, sorry, first body. Okay, so two different concentric cylinders 1 and 2. Okay, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है you have to find out the radiation view factor of the outer cylinder onto itself. outer cylinder कौन सा है? 2, उसी के ऊपर 2 के ऊपर ये फाइंड आउट करना. ओके, तो कैसे होगा? यहाँ पर देखो 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 1 क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि 1 इजी पड़ता है. क्यों इजी पड़ता है? क्योंकि 1 अपने आप को देख नहीं पा रहा है. सो 1 बॉडी जो सिलेंडर है कि किसके संपर्क में आ रहा है? 1 2 के, और कोई थर्ड बॉडी नहीं है. तो 1 को देख पा रहा है, 1 2 को भी देख पा रहा मतलब कि रेडिएशन या हीट जो निकल रहा है वो स्ट्राइक किसके ऊपर हो रहा है? 1 से हीट निकल रहा है तो 1 को देख पा रहा है, 1 2 को दे पा रहा है हीट, तो इक्वल टू समीशन क्या होगा? 1 होता है. टोटल इज 1 मीन्स 100%. ओके, हियर if 1 इक्वल टू 0. क्यों? क्योंकि 1 को नहीं देख पा रहा है ना. जैसे कि मेरे पास ये कोई बॉडी है ना. कौन सा बॉडी है? ये बॉडी है ना. यहाँ से ये हीटेड बॉडी है. यहाँ से हीट कैसे निकल रहा है? ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है. यदि ये बॉडी 1 है, ठीक है,
तो क्या F11 अपने आप को देख पा रहा है क्या? नहीं देख पा रहा। पा रहा मतलब कि ये हीट स्ट्राइक हो रहा है क्या 1 पर? इस पॉइंट से जो निकल रहा है नहीं हो रहा है, तो दिस इज द केस 1 1। यदि वही कंडीशन, वही बॉडी हम लोग कुछ ऐसा ले लें, कनकेव, है ना, बॉडी 1 हो गया, ठीक है। यहाँ से सपोज एक रे निकल रहा है, ठीक है, एक रे ऐसे निकला, ऐसे निकला, ठीक है, विल गो इन स्पेस इन ऑल द डायरेक्शन, ऐसे भी होगा। ये अपने आप को स्ट्राइक कर रहा है ना, F11 कुछ वैल्यू होगा इसका, ठीक है। और ये किसको इसको बजा रहा, सपोज ये 2 पर जाकर स्ट्राइक कर रहा है, ये वाला, है ना। F22 भी F1 से 2 पर स्ट्राइक का वैल्यू होगा, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, F11 1 से निकल रहा है, 1 पर जा रहा है, F1 से निकल रहा है, 2 पे जा रहा है ना। और कोई तीसरा बॉडी नहीं है, ठीक है। यदि सपोज तीसरा बॉडी भी यहाँ पर होता है, ये तीसरा बॉडी होता है, तो ये यहाँ से भी एक रे जाता है, यहाँ पर स्ट्राइक करता है, यहाँ पर 1 3 को भी दे रहा है हीट, ठीक है। तो सम 4 होता है, तो इसी तरीके से 1 F14 भी प्लस होता है, ठीक है। Similar, the same concept we will use here. So F11 equal to 0 here. Why? Because this case 1 को नहीं देख पा रहा है, ठीक है, because कर्व सरफेस, ठीक है, अपने आप को नहीं देख पा रहा है, आउटर है। तो पुट दिस वैल्यू हियर, okay, what you will be getting, F12 will be equal to 1, है ना, F12। लेकिन मेरे को बोला F22 निकालने के लिए, तो यहाँ पर नाउ कह सकते हैं F21 2 से निकल रहा है हीट, 2 से भी निकल सकता है, 2 से 1 पे जा रहा है, 2 से 2 पर भी जा रहा है, 2 से 3 भी नहीं जाएगा क्योंकि थर्ड बॉडी है नहीं। तो जितने पॉसिबल केसेस हैं वी विल कंसिडर हियर। F2 से, है ना, आगे में 1 है मतलब 1 से निकल रहा है, आगे में 1 है 1 से निकल रहा है, 1 से 1 पे जा रहा है, 1 से 2 पे जा रहा है। सिमिलरली हियर 2 1 पे जा रहा है, 2 से निकल के 2 पे जा रहा है, 2 से निकल के 2 भी 3 पे जा रहा है, नहीं, क्योंकि दो ही बॉडी है। तो समेशन क्या होता है, मैक्सिमम 1। तो हियर कैन आई पुट हियर, नहीं पुट कर सकते क्योंकि यहाँ पर 2 1 है ना, हमें 2 2। तो इस वाले से यहाँ से क्या करूंगा, मैं एक केस करता हूँ, F12 इज इक्वल टू, है ना, 1 1, ठीक है। दूसरा क्या बचा, 2 A2, ठीक है, F21, ये होता है रेसिप्रोसिटी थ्योरम, है ना, ये होता है। F12 मालूम है क्या हमें, है ना, मालूम है, तो पुट करेंगे 1, तो A1 इंटू 1 इक्वल टू A2 इंटू F21, है ना। F21 बराबर क्या होगा, A1 अपॉन A2 हो गया। हमें क्या निकाल, ये आ गया, क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, है ना। पुट 2 in 1, तो क्या आ गया, F21 कितना है, 21 प्लस F22 इक्वल टू 1, ओके। F22 विल बी 1 माइनस F21, ओके, नहीं आएगा F21, ठीक है, 1 माइनस 21 कितना है, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, A1 अपॉन A2, ठीक है। A1 क्या है यहाँ पर, सरफेस एरिया A1 का, A1 का सरफेस एरिया क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, पाई डी या 2 पाई आर इंटू एल लेंथ, सपोज एल इज आवर व्हाट, दिस आवर एल लेंथ, ठीक है। तो क्या होगा, 1 माइनस 2 पाई, अंदर का रेडियस दे रखा है ना, हाउ मच, कैपिटल आर आई, 2 पाई आर आई इंटू एल, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द इनर
सिलेंडर। आउटर के लिए कितना है, A2 के लिए, ये बाहर वाला सिलेंडर के लिए ये वाला रेडियस कितना है, R0 है ना, R0 दिस वन। 2 पाई सर्कआउट सरफेस एरिया क्या हुआ आउटर के लिए, 2 पाई R0 इंटू L, है ना। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, L से L कैंसिल, कितना आ रहा है 1 - RI/R0, ये आ गया F22। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो RI/R0 1 माइनस में 1 - RI/R0, सो डी इज आवर आंसर। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन 2005 का गेट क्वेश्चन, 2 मार्क्स। ये सॉलिड सिलेंडर सरफेस 2, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है, इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए हॉलो स्फीयर सरफेस 1। एक बड़ा सा फुटबॉल है, ठीक है, 3D में, ठीक है, जो कि कैसा है, स्फीयर है, कैसा है, स्फीयर, SPHERE, ठीक है, 1 है, सरफेस 1 बोलते हैं इसको, बोलते हैं सरफेस 2, है ना, surface 2 surface 1। the diameter of the sphere is कितना, 1 मीटर, कितना दे रखा है 1 मीटर diameter, while the cylinder has a diameter and length of 0.5 मीटर each। इसका कितना दे रखा है, डायमीटर 0.5 मीटर, और लेंथ कितना दे रखा है, लेंथ गिवन इज 0.5 मीटर, है ना। एक सिलेंडर है, इनसाइड में एक फुटबॉल के अंदर में, स्फीयर के अंदर में, ठीक। द रेडिएशन फैक्ट कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर F11 क्या होगा, F11 हमें पूछा है क्या होगा, है ना। तो कैसे बनेगा इसका क्वेश्चन, ठीक है, स्टार्ट करते हैं इनसाइड से, क्यों, क्योंकि वो मेरे लिए इजी पड़ेगा। कैसे, F2 2 से बॉडी से किस किस बॉडी के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, 2 से 1 पर स्ट्राइक कर रहा है, अंदर का सरफेस पर स्ट्राइक कर रहा है हीट, ठीक है, यहाँ से एक रे निकल रहा है, यहाँ स्ट्राइक कर, है ना। 2 2 पर भी स्ट्राइक कर सकता है, ठीक है। 2 1 पे जा रहा है, F से 2 और किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, F2 से 3 पे जा रहा है, नहीं, दो ही बॉडी है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अभी यहाँ देखो, यहाँ F220 होगा क्या, क्यों, क्योंकि ये कर्व सरफेस है, अपने आप को नहीं देख रहा है, ऑलरेडी आई डिस्कस्ड इन द लास्ट क्वेश्चन। so when you will put here, you will be getting F21 equal to 1, ओके, एक तो वैल्यू आ गया, लेकिन F11 मेरे को चाहिए नाउ, ठीक है। अब आते हैं F11 को देख रहा है, F1 से ऊपर भी जा रहा है, ठीक है, मतलब F1 से सरफेस 1 से किस पे जा रहा है, 1 पे सरफेस पे जा रहा है, 1 से निकल के दूसरे सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है हीट, ठीक है, इज इक्वल टू मैक्सिमम 1, ठीक है। हमें मालूम है F21, यहाँ पे तो 1 2 है, इसका थोड़ा रेसिप्रोसिटी करेंगे, 1 2 का कॉम्बिनेशन में, ऐसा दे 1 2 है, यहाँ 2 1 है ना, तो 1 2 2 1 ऐसे करेंगे, A 1 से 2 मतलब 1 और 2 का कॉम्बिनेशन लेंगे, A 2 हो गया, F 2 1, ठीक है, 2 1 मालूम है मेरे को, दिस इज नोन 1, तो F12 will be equal to A2 upon A1 into F21, okay, so A2 upon A1
into how much f21 given 1. Okay, from here. So finally a2 upon a1 we have come received. ठीक है, अब मेरे को क्या जानना है, दिस इज आवर इक्वेशन 1, दिस इज आवर इक्वेशन 2, हमें क्या जानना है f11, यहाँ से ये जानने के लिए 1 2 तो मालूम चल गया, तो फ्रॉम 1, ओके, व्हाट इज f11 प्लस f12 इक्वल टू 1, ओके। नाउ हमें f11 जानना है ना, यहाँ से है ना, इक्वल टू 1 माइनस f12 करेंगे, हमें ये पुट कर सकते हैं क्या यहाँ पे, 1 2 1 माइनस a2 अपॉन a1, ठीक है, ये आंसर आएगा। लेकिन आंसर किस फॉर्म में है, वैल्यू दे रखा है f11, ओके, वैल्यू के फॉर्म में है, ठीक है, कोई नहीं। हमें a2, हमें फाइनली क्या आ गया, 1 माइनस a2, a2 क्या है यहाँ पर, इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा ऊपर, ठीक है, क्या आ गया, f11 इक्वल टू f11 इक्वल टू f11 इक्वल टू 1 माइनस a2 अपॉन a1, a2 अपॉन a1 आ गया, ठीक है। इसका कलर लेते हैं, साफ दिखे ना, हाँ, a2 क्या है, जितने सरफेस एरिया है सॉलिड सिलेंडर का वो लेंगे, पहले तो कर्ड सरफेस एरिया पाई डी इंटू एल, ठीक है, पाई इंटू डी, डी कितना है 0.5, ये है ना डी, दिस इज डी ना, पाई डी इंटू एल लेंथ, ठीक है, ये हो गया 0.5, दिस इज एल लेंथ, एल लेंथ, ये हो गया हमें कर्ड सरफेस का, लेकिन ये भी तो है ना, दो सर्कल भी तो है, 2D में देखें तो क्या होगा, कर्ड सर्फ इसका सरफेस एरिया कितना है, दिस इज एक्चुअली सरफेस एरिया, ओके, सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया का चारों तरफ का तो निकाल दिए, पाई डी इंटू एल, अब इसका क्या होगा, ये भी तो है, दो सर्कल है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ठीक है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, ठीक है, डायमीटर का स्क्वायर, ये हो गया A2 का एरिया। और ये स्फीयर का नीचे में पूछा है एरिया क्या होता है, स्फीयर का एरिया, इनर सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है, आर का स्क्वायर बोले तो ये डायमीटर है ना, क्वेश्चन में डायमीटर दे रखा है, here hollow sphere 1, the diameter of the sphere is, diameter दे रखा है तो रेडियस क्या हो गया 0.5, तो रेडियस इज हाउ मच 0.5 मीटर, पाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, निकालो 1 माइनस क्या हो गया पाई 0.5 का स्क्वायर, है ना, प्लस ये से ये कैंसिल करो 2, तो 1/2 को 0.5 करो, है ना, और पाई 0.5 का स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई 0.5 का स्क्वायर, देखो कुछ ना कुछ कट रहा है, 1 माइनस ये पाई 0.5 स्क्वायर, 5.5 स्क्वायर 5.5, कितना आ रहा है 1 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 4, कितना आ रहा है 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 4, कितना आ रहा है 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा,
1 - 3/8 कितना आ रहा है? 8 - 5 5/3 कितना आ रहा है? 0.6 4 जा 48 2 2 2 जा 16 5 है ना 0.625 ठीक है 0.625 तो आंसर आ गया ना यहाँ पर 0.625 okay so this is how you can solve and calculate the various shape factors by this easy method. Now the next question, two black surfaces AB गेट 2017 का 2 मार्क्स का है okay? चलो देखते हैं टू ब्लैक सरफेस AB एंड BC ठीक है AB है एक सरफेस है और एक सरफेस ये है A B and this is our what? This is our surface 1 and this is surface 2. Two black surfaces AB है ना ये कैसा है ब्लैक है ये भी ब्लैक है AB एंड BC सर्फेसेस बोल रहा है यानी कि दोनों प्लूरल है ऑफ लेंथ 5 मीटर ये कितना है लेंथ कितना दे रखा है इसका मतलब यहां से लेकर यहाँ लेंथ कितना दे रखा है L2 का कितना दे रखा है 5 मीटर और ये L1 का कितना दे रखा है लेंथ मतलब यहां से लेकर यहां तक का लेंथ दिस इज गिवन L1 इज इक्वल टू 6 मीटर है ना और उसी तरीके से यहाँ पर ये वाला है ना are oriented as shown both surfaces extend infinitely into the third dimension यानी कि कुछ इस तरीके का हो है ना यदि मैं ऐसे ड्रॉ करूं है ना इस तरीके से मतलब कि दो प्लेट होगा इस तरीके लाइक दिस है ना इस तरीके से 3D में कुछ ऐसा दिखेगा है ना इस तरीके से 2D में दिखेगा तो क्लियर है पिक्चर हम लोगों का तो इसे आते हैं both surfaces extend infinitely to the third dimensions given that view factor 1 2 YF12 given is 0.5 T1 टेम्परेचर दे रखा है चलो भाई T1 का टेम्परेचर दे रखा है 800 K एंड T2 टेम्परेचर गिवन इज यहाँ का टेम्परेचर T2 दे रखा है 600 K ठीक है सराउंडिंग सराउंडिंग का है ये यहाँ पर है ठीक है टी सराउंडिंग का टेम्परेचर दे रखा है कितना 300 केल्विन एंड स्टेफन बोल्टाजमैन कांस्टेंट सिग्मा बी दे रखा है द हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम सरफेस 2 टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट यानी सिग्मा 2 से सराउंडिंग का पूछ रहा है ये ई होगा है ना हीट ट्रांसफर रेट कितना होगा ये ई होगा या क्यू होगा है ना क्यू टू सरफेस इज इक्वल टू क्या होगा heat transfer rate from surface 2 to the surrounding environment किलोवाट कितना होगा देखा जाए कैसे सॉल्व करना है इसको देखो यहाँ पर Q2 सराउंडिंग ठीक है क्या होगा इससे पहले एक चीज पढ़ते हैं हम लोग F12 क्या होता है क्या होता है फॉर्मूला हम लोग क्या है डायरेक्ट रेडिएशन फ्रॉम सरफेस 1 इंसिडेंट upon surface 2 to the
total radiation emitted from surface के 1। जाहिर सी बात है 1 से कोई बॉडी स्ट्राइक हो रहा है, सपोज 1 है ना, और ये 2 है, ऐसे समझो ये बॉडी मेरे पास है इमीटर, है ना, और ये मेरे पास कलेक्टर है। तो यहाँ से ये ऐसे भी रेडिएशन जा रहा है, ऐसे रेडिएशन जा रहा है, इन ऑल डायरेक्शन, और ये ऐसे भी स्ट्राइक, है ना। तो F12 यदि ये 1 बॉडी है और ये 2 बॉडी है ना, तो F12 क्या, शेप फैक्टर जो होता है आई जे वेरीज फ्रॉम 0 to 1, है ना। इस कंडीशन में 1 कब होगा, जब ये कलेक्टर जो है, कलेक्टर, और ये हो गया इमीटर, है ना। ये इमीटर मैक्सिमम हीट कहाँ पर दे रहा है, मैक्सिमम हीट जो कि पूरी तरीके से कलेक्टर ऑब्जर्व करे यहाँ पर होगा, है ना, नॉर्मल डायरेक्शन में होगा। तो इसको बोलेंगे 1 से 2 में, है ना, जैसे ये केस हो गया, है ना, 1 हो गया और 2 हो गया। 1 से जितना भी रेडिएशन निकल रहा है 2 पर जाकर 100% फंस रहा है या स्ट्राइक हो रहा है। यहाँ पर करेंगे 1 to F12 इक्वल टू 1, है ना। ये सेम केस यहाँ पर ये 1, F12 जीरो कब होगा, जीरो कब होगा, इस वाले केस, है ना। जीरो कैसे कब होगा, जब ये कलेक्टर इस डायरेक्शन में है, यानी कि इस डायरेक्शन, ये एक्स हो गया, है ना। तो ये वाला जो यहाँ से निकल रहा है हमें, है ना, ये जो, है ना, यहाँ से रे क्या एक्स डायरेक्शन में जा रहा है क्या, कोई रेडिएशन नहीं जा रहा है, या तो ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, सब जगह जा रहा है, सब जगह जा रहा है, इधर भी जा रहा है स्पेस में, but in x direction it is 0. So we can say that if यहाँ पर ij is 0 for in x directions and here if ij is 1, और ये 1 और 0 के बीच में कुछ वैल्यू होगा, ये हो सकता है 0.9 हो, ये हो सकता है 0.7 हो, ये हो सकता है 0.6 हो, ये हो सकता है 0.2 हो, 0.4 हो, ऐसे धीरे धीरे आके इन दिस लाइन along this x axis if ij will be 0, शेप फैक्टर, यानी कि यह व्यू फैक्टर, व्यू मतलब देखना, मतलब यहाँ से जो रे हीट निकल रहा है वो इस डायरेक्शन को नहीं देख रहा है। Okay, this is the meaning. Okay, the same concept we will be using here. Okay, for finding out if two surface surrounding, या surface surrounding क्या होगा, डायरेक्ट रेडिएशन, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें क्या इस फॉर्मूला में, है ना, या यू कहें if 2 से, है ना, 2 से क्वेश्चन पूछा है, हाँ, 2 से सराउंडिंग में, 2 से सराउंडिंग में फॉर्मूला डायरेक्ट रेडिएशंस क्या होगा, क्यू, ये तो निकालना, टू सराउंडिंग, है ना, टोटल रेडिएशन 2 से कितना निकल रहा है, 2 से कितना निकल रहा है रेडिएशन, तो 2 से रेडिएशन निकल रहा है सिग्मा बी, है ना, ब्लैक बॉडी है 2, यानी कि Q2 कह सकते हैं क्या, है ना। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं, Q2 को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बी, ओके, ए एरिया, टी टू द पावर 4, यानी कि टी किससे एक्सचेंज कराना है मेरे को, सरफेस 2 और सराउंडिंग से, तो 2 टू द पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग टू द पावर 4,
है ना, इन दोनों के बीच में क्या हीट एक्सचेंज होता है, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो ये फॉर्मूला मेरे को इससे मिल रहा है। हमें क्या निकालना है, टू सराउंडिंग, यही निकालना है, क्वेश्चन पूछ कर दो यहाँ पर F2 सराउंडिंग, है ना, इंटू सिग्मा बी ए टी टू द पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग टू द पावर 4। ओके, दिस हमें देखो सिग्मा बी दे रखा है, स्टेफन बोल्टाजमैन कांस्टेंट, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। एरिया, एरिया क्या है यहाँ पर, कौन सा एरिया, टू से निकल रहा है ना, टू एरिया कर देंगे, टू एरिया कर देंगे, टू से निकल रहा है तो हीट रेडिएशन कहाँ से निकालना है, Q2 ना, यहाँ से हीट निकल रहा है ना, दिस इज Q2 टोटल हीट, या टोटल हीट इमिटेड बाय द सरफेस, वन था, वन के लिए, यहाँ टू के लिए है तो टू कर देंगे रिप्लेस। ओके, टू, then T2 we know 600, T surrounding also we know, क्या अननोन है, सिर्फ ये अननोन है, इसके लिए काम करना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका ऊपर मेहनत है। तो शेप फैक्टर कैसे निकालेंगे यहाँ पर, F2 सराउंडिंग निकालने के लिए, F2 सराउंडिंग निकालने के लिए कैसे होगा, हमें F12 दे रखा है ना, F12 देखा जाए, F1 से 1 प्लस F1 से निकल के 1 पे जा रहा है, 1 से निकल के 2 पे भी जाके स्ट्राइक कर रहा है, सरफेस 1 से 1 पे भी रेडिएशन आ सकता है, सरफेस 1 से 2 पर जाकर स्ट्राइक कर सकता है, सरफेस 1 से सराउंडिंग में भी जाकर स्ट्राइक कर सकता है। तीसरा एक और केस है, 1 सराउंडिंग इक्वल टू कितना हो जाता है, टोटल 1, है ना। इफ 1 2 तो मालूम है मेरे को, इफ 1 1 होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है, दिस इज आवर फ्लैट सरफेस, क्वेश्चन में दे रखा है ना, फ्लैट सरफेस है। हम्म, और ये जीरो हो गया, प्लस ये 0.5 दे रखा है क्या, F12 ये दे रखा है 12.5, और क्या बचा, F1 से सराउंडिंग इक्वल टू 1, है ना। तो फाइनली F1 सराउंडिंग वी आर गेटिंग 1 माइनस 0.5 इक्वल टू 0.5, है ना, ये आ गया। हमें ये वाला देखते हुए चलना है ना, ये वाला। अब देखो ये तो आ गया मेरे पास, हमें टू सराउंडिंग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट क्या स्टेप होना चाहिए, नेक्स्ट क्या स्टेप होना चाहिए, वन और सराउंडिंग, है ना, इफ वन टू, टू से निकालते हैं, क्योंकि क्यों निकालते हैं, क्यों टू चाहिए, टू से वन पे जा रहा है, टू से टू पर भी जा रहा है, इफ टू से सराउंडिंग में भी जा रहा है ना, इक्वल टू 1, है ना, ये इफ टू टू तो देख नहीं पा रहा है, क्यों, क्योंकि ये फ्लैट सरफेस, तो कम क्या आया, F21 इक्वल टू F21 प्लस F2 सराउंडिंग, है ना, ये निकालना है मेरे को 1, है ना, ये। अब देखो यहाँ पर हमें ये निकालना है ना, तो ये वाला अननोन है, तो यहाँ रेसिप्रोसिटी थ्योरम 1 और 2 के बीच में लगा देते हैं, यूज रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ठीक है, F21 है,
A2 कर दो, है ना, A1 कर दो, A12, ये तो होता है ना, ये होता है ना। हमें क्या मालूम था, 1 2 मालूम है, 1 2 ये मालूम है, F21 बराबर क्या होगा, A1 अपॉन A2 इंटू 1 2 कितना है 0.5 फ्रॉम हियर, है ना। तो A1 कितना है, A1 एरिया कितना है, दिस वन इज 6 लेंथ, और ये L लेंथ तक मानते, 6 इंटू सपोज L परपेंडिकुलर टू माई स्क्रीन पे और पेपर। A2 कितना एरिया है, दिस इज कितना लेंथ दे रखा है 5, है ना, दिस इज 5, लेंथ इंटू विड्थ, ये विड्थ हो गया और अंदर में लेंथ L होगा, ठीक है, ये वाला जो 3D में देखते हैं। तो हो गया 5 इंटू L इंटू 0.5, है ना। तो फाइनली क्या आ रहा है, तो फाइनली आ रहा है, ये कैंसिल करो, ये से ये गया, 5 से 5 गया, ये हो गया 0.6, 21 इज कमिंग 0.6, लेकिन 21, अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू पुट, 21 तो मालूम चल गया, F2 सरफेस आ जाएगा क्या, जो वैल्यू पुट सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो धीरे धीरे हम लोग, थोड़ा सा ये लंबा है, दिस इज आवर इक्वेशन, सपोज 1 2 एंड 3, तो पुट क्या करेंगे, पुट 3 इन 2, so what we will get, F2 surrounding equal to 1 minus F2 1, तो 1 माइनस F21 कितना है 0.6, फाइनली 0.4 आया, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या यहाँ पर आ गया ना, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं 0.4, है ना। जीरो पॉइंट फोर इनपुट, फाइनली Q2 सराउंडिंग इक्वल टू 0.4 इंटू 5.67 इंटू 10⁻⁸, ओके, गिवन इन द क्वेश्चन कांस्टेंट, ठीक है, इंटू A2 का एरिया, A2 का एरिया क्या है, ये A2 है ना, दिस वन इज आवर A2 ना, दिस वन A2, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितना है 5 मीटर, विड्थ कितना है, यूनिटी मानते हैं, ठीक है, यूनिटी परपेंडिकुलर टू, तो 5 इंटू 1 इंटू T2, T2 कितना है 600, T सराउंडिंग कितना है 300, तो 600 टू द पावर 4 माइनस 300 टू द पावर 4, ठीक है, इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। ओके, तो क्या क्या है, 0.4 इंटू 5.67 इंटू 10⁻⁸ इंटू इंटू 5 इंटू 1 इंटू 600 टू द पावर 4 माइनस 300 टू द पावर 4, है ना, ये आया इतना, तो इंजीनियरिंग में करो इतना, तो 13.778, 13.778 इंटू 10⁻³ ठीक है ना, 8 10⁻³ ठीक है। तो फाइनली वी हैव गॉट दिस, ये ऑल स्टैंडर्ड यूनिट में है, तो वाट, ठीक है, वाट में आ गया, हमें क्वेश्चन किस में किलो वाट में लाना है,
13.778 किलो वाट में आएगा। ठीक है, 10 पावर 3 था ना यहाँ पर, 10 पावर 3 था। हाँ, 10 पावर 3 था यहाँ पर ना, here Q2 सराउंडिंग 10 पावर 3, तो ये वाट में आएगा 13.778 किलो आंसर। तो इस कंसेप्ट के बेसिस पर वी कैन सॉल्व सच प्रॉब्लम, के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2012। क्या बोल रहा है, एन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मिक्सचर has transmissibility for heat radiation that is practically equal to। देखो, कोई सरफेस पे, कोई सरफेस है मेरे पास तरीके से, है ना, तो इसके ऊपर जो हीट रे आता है, ठीक है, हीट रे आता है, जैसे कि ये आया, है ना, ये आ गया क्यू नॉट टोटल हीट। ठीक है, ये तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, या तो ये रिफ्लेक्ट होगा, क्यू आर होगा रिफ्लेक्टेड, या हम लोगों का सीधे ऐसे बाहर निकल जाए, जो कि क्यू टी ट्रांसमिट। ठीक है, ये ग्लास के केस में होता है, क्यू टी ग्लास के केस में होता है, और ट्रांसमिट कर दे, लाइट आर पार करना। क्यू आर मतलब रिफ्लेक्ट कर, रिफ्लेक्ट मतलब कि स्पेक्ट्रल, स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको। ठीक है, स्पेक्ट्रम। और तीसरा क्या होता है कि कुछ बॉडी अपने अंदर ऑब्जर्व करते, कंजर्वेशन ऑफ हीट, कुछ बॉडी को ऑब्जर्व, क्यू ए बोल, ऑब्जर्व करता है, वो हीटिंग हो रहा है वो बॉडी। ठीक है, ये 2D में, ये 3D में कर। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ हीट, Q नॉट इज इक्वल टू Q ऑब्जर्व प्लस Q R प्लस Q T। कैसे आया, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या हीट, या हीट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, हम क्या कर सकते हैं, 1 = QA अपॉन Q नॉट प्लस QR अपॉन Q नॉट प्लस QT अपॉन Q नॉट लिख सकते हैं, या 1 = अल्फा इसको बोलते हैं, प्लस रिफ्लेक्टिविटी बोलते हैं, प्लस ट्रांसमिशन, इसी रेशियो को बोलते हैं। अल्फा क्या हो गया, QA अपॉन Q, रो QR अपॉन Q नॉट, ट्रांसमिसिबिलिटी QT अपॉन Q नॉट। क्वेश्चन में वापिस आते हैं, क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिक्सचर, जैसे कि मेरे पास कोई एक चैम्बर है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन को हम लोग इस तरीके से, ठीक है, जैसे ये हो गया, ये सब क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ये हो गया हमें ऑक्सीजन O2, है ना। दूसरा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हम लोग इस तरीके से ले लो, है ना, ये हो गया नाइट्रोजन, है ना, ये हो गया N2। ये एक चैम्बर में इसे डालते हैं। ठीक है, कौन सा चैम्बर में, ये चैम्बर को हम लोग दूसरे चैम्बर में डालते हैं। ये हो गया चैम्बर। अब देखा जाए तो क्वेश्चन थोड़ा समझते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोलता है कि
कि ट्रांसमिसिबिलिटी का प्रैक्टिकल वैल्यू क्या होगा, मतलब कि ये वाला दिस वैल्यू। देखो जब भी यहाँ से एक रेडिएशन आ रहा है, ठीक है, क्यू नॉट आ रहा है इसकी तरह, तो मॉलिक्यूल्स प्रैक्टिकली इन ए चैम्बर आर व्हाट, चैम्बर में नहीं भी है, चलो चैम्बर हटाते हैं, स्पेस में मानते हैं, स्पेस में है। व्हाट इज दिस, दिस इज आवर स्पेस। ठीक है, एक सन से रे आ रहा है, क्यू नॉट हीट आ रहा है, और इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है। तो since the molecules size of nitrogen and oxygen are very or tends to very small size, okay, so practically we can say that almost all the q naught will what, will without reflecting or without absorption will pass, so we can say that transmissibility is 1। ठीक है, जो सन से हम लोगों का हीट आ रहा है और हम लोगों के ऊपर में या अर्थ के लैंड पे या हम लोगों के शरीर पे जो स्ट्राइक कर रहा है, उस डायरेक्ट ट्रांसमिसिबिलिटी 0 है, 100% हमें मिल रहा है। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्टिविटी मॉलिक्यूल्स का साइज, चाहे नाइट्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो, कोई सा भी हो, वेरी स्मॉल, तो यहाँ से ये स्ट्राइक होने का, ठीक है, चांसेस इज वेरी स्मॉल, मिनिमम। ठीक है, और साइज इतना छोटा है कि ये जो हीट आ रहा है इस मॉलिक्यूल्स को, एक सिंगल मॉलिक्यूल्स के नाइट्रोजन या ऑक्सीजन को हीट अप या ऑब्जर्व भी ना करे, तो यहाँ रिफ्लेक्टिविटी, ओके, दिस रिफ्लेक्टिविटी विल बी 0, ओके, ऑलमोस्ट 0। तो ये जो हीट आ रहा है और ये अल्फा भी हमें 0 होगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है, टेंस टू, तो ऑब्जर्व भी नहीं कर रहा है और रिफ्लेक्ट भी नहीं कर रहा है, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वी कैन से दैट ऑलमोस्ट 99.99% what the rays or q naught radiation is passing or throughout passing the space in which nitrogen and oxygens are there. So we can say that transmissibility is almost 1. So this way. ठीक है, now question number 5, for the radiation between two infinite parallel planes of immiscibility itna and itna respectively, which one of the following is the expression of immiscibility factor। देखो जब भी हम लोगों का दो, हम लोगों का पैरेलल प्लेट है, ठीक, this is our plate 1, this is our plate what 2, plate 1 plate 2, ठीक है, इमिसिबिलिटी ये, इमिसिबिलिटी 2 ये दे रखा है। अब क्या बोल रहा है, ए ग्रे बॉडी फैक्टर पूछा है, एफ जी 1 2, इसी को बोलते हैं इमिसिबिलिटी फैक्टर। ये पूछा है कितना होता है। देखो जब भी हम लोगों का रे पास हो रहा है, सपोज ये है EB1 से इमिसी पावर इमिट कर रहा है, ऐसे ये ऐसे इमिट कर रहा है, ये हो गया EB, है ना, तो हम लोग का Q1 से 2 जो नेट हीट एक्सचेंज हो रहा है क्या होगा, EB1 माइनस EB2, ठीक है, अपॉन टोटल रेसिस्टेंस डिनोमिनेटर में कौन कौन सा रेसिस्टेंस होगा, सरफेस रेसिस्टेंस, कौन सा, सरफेस रेसिस्टेंस, अनदर इज द, ये सरफेस रेसिस्टेंस, बीच में स्पेस हो गया, है ना, तो हमें कौन कौन सा रेसिस्टेंस देखने को मिला, 3 रेसिस्टेंस, कौन कौन सा, कौन कौन सा, सरफेस, स्पेस, फिर से सरफेस, तो यहाँ पर हो गया
पी वन इमिसिव पावर निकल रहा है, और लास्ट में इमिसिव पावर कितना है, ई पी टू, मतलब ब्लैक बॉडी वन का ब्लैक बॉडी टू। ये हो गया जे वन, ठीक है, जिसको रेडियोसिटी बोलते हैं। तो ये हो गया जे। इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, सरफेस रेसिस्टेंस क्या होता है इसका, वन माइनस एप्सिलॉन वन ए वन एप्सिलॉन वन, ठीक है। सरफेस का, स्पेस का रेसिस्टेंस कितना होता है, वन बाई ए वन, और वन से टू जा, ठीक है। और इसका क्या होगा, सरफेस टू का इमिसिबिलिटी टू, ए टू इमिसिबिलिटी टू, ये हो गया सरफेस रेसिस्टेंस फॉर वन सरफेस, ठीक है। ये हुआ स्पेस रेसिस्टेंस, है ना। ये हो गया सरफेस रेसिस्टेंस फॉर सरफेस टू। देखो इस तरीके से है, 3D में देखे तो, ठीक है। ये वन है, तो ये का सरफेस पर रेसिस्टेंस जो होता है, दिस इज वन माइनस एप्सिलॉन वन अपॉन ए वन एप्सिलॉन वन, ठीक है। एक दूसरा है हम लोगों का ये टू, है ना, ये इनसाइड में है, इनसाइड का माइनस एप्सिलॉन टू माइनस ए टू एप्सिलॉन टू, इस बीच में जो ए स्पेस है, ठीक है, स्पेस है जिससे रेडिएशन ऐसे पास हो रहा है ना, ऐसे पास हो रहा है। तो इसका क्या होगा, वन बाई ए वन एफ वन टू, है ना, स्पेस रेसिस्टेंस। तो तीन तरह का रेसिस्टेंस हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू वन से टू जो नेट हीट एक्सचेंज हो रहा है, वन ई बी वन माइनस ई बी टू, है ना। सम ऑफ ऑल द रेसिस्टेंस, कौन कौन सा सम ऑफ द है, वन माइनस एप्सिलॉन वन अपॉन ए वन एप्सिलॉन वन प्लस वन बाई ए वन एफ वन टू प्लस वन माइनस एप्सिलॉन टू अपॉन ए टू, ओके, एप्सिलॉन टू, है ना, तरीके। सिंस, है ना, ए वन इक्वल टू ए टू, है ना, एरिया, यदि ये एरिया ए वन है ना, यदि ये एरिया ए टू है, दोनों पैरेलल प्लेट है, दोनों ऐसे पैरेलल प्लेट है, इसका एरिया ए वन है और इसका एरिया ए टू है, ओके, बोथ लाइक दिस, ठीक है। दो आपस में पैरेलल प्लेट है लाइक दिस, ठीक है, तरीके से। एरिया इसका ए वन है, इसका ए टू, ये दोनों दोनों का बराबर होगा ए वन ए टू, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर ये ए को ऊपर ले जाओ, क्यू वन टू नेट हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू, ए ऊपर ले जाओ, ठीक है, इसको ई बी वन माइनस ई टू, है ना, अपॉन वन माइनस एप्सिलॉन वन प्लस वन बाई एफ वन टू प्लस वन माइनस एप्सिलॉन टू अपॉन एप्सिलॉन टू, ठीक है। फर्दर इसको करते हैं, देखो ए ई बी क्या होता है, पर यूनिट एरिया के लिए सिग्मा बी टी टू द पावर फोर टी वन टू द पावर फोर माइनस टी टू टू द पावर फोर, ठीक है। इसका टेम्परेचर T1 है बॉडी का, और ये इसका टेम्परेचर कितना है, T2 है, ठीक है। वी हैव अज्यूम T1 इज ग्रेटर देन T, ठीक है, किसी एक को बढ़ाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, वन माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन वन माइनस वन प्लस वन बाई एफ वन टू प्लस वन बाई एप्सिलॉन टू, है ना, माइनस वन, ठीक है।
अब देखो हियर 1 से जो रे निकल रहा है 2 पे जा रहा है, ये 1 होगा क्या? ठीक है, बिकॉज बिकॉज एफ 1 से जो रे निकल रहा है कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ गायब हो जा रहा है? एफ 1 से निकल रहा है 1 पे भी जा रहा है, एफ 1 से निकल रहा है 2 पे भी जा रहा है, और 3 बॉडी तो है नहीं। इक्वल टू सम 1 होगा क्या? 1 से जो निकल रहा है 2 पे जा रहा है, और 1 से निकल रहा है 1 पे भी जा रहा है, और तीसरा जगह तो कहीं गायब हो नहीं रहा है हीट। ठीक, लेकिन F11 0 होगा, क्यों? क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है। F11 अपने आप को हीट नहीं दे रहा है। ठीक है, ये फ्लैट सरफेस है इस तरीके से, है ना। यहाँ से जो हो रहा है परपेंडिकुलर है ना सरफेस के, F12 जो होगा हमेशा 1 होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि F11 अपने आप को देख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलवेज द रेडिएशन हीट ray of light which is passing through 3 into 10 to the power 8 meter per second with the speed of light always travel in a straight line। ऐसा तो नहीं होता है कि ऐसे लेके हीट ऐसे रे ऐसे घूम के वापस टेढ़ा जा रहा है, नहीं। ऑलवेज द लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ओके, तो F11 इक्वल टू 0, है ना। तो बचा क्या? F12 इक्वल टू 1। So we'll put here F11 equal F12 equal to here 1. Finally, what we are getting F12 net equal to A sigma B T1 to the power 4 minus T to the power 4 upon 1 by epsilon 1 minus 1 plus 1। ठीक है, ये 1 हो गया, है ना। 1 upon 1, है ना, प्लस 1 by epsilon 2 माइनस 1। तो ये से ये कैंसिल हो गया, है ना। सिग्मा बी टी 1 टू द पावर 4 माइनस टी 2 टू द पावर 4 अपॉन 1 बाई एप्सिलॉन 1 प्लस 1 बाई एप्सिलॉन 2 माइनस 1। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, इसी को बोलते हैं Fg12 ए सिग्मा बी T1 to the power 4 minus T power 4। ठीक है, तो ये क्या हुआ? हियर Fg12 is ग्रे बॉडी फैक्टर और इंटरचेंज फैक्टर। इंटर जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में? वर्ड क्या दे रखा है? इमिसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, अलग अलग नाम है। इंटरचेंज फैक्टर। ठीक है, क्या होगा? Fg12 is equal to 1 by epsilon 1 plus 1 by epsilon 2 minus 1। So finally this is our gray body factor। Answer is what? Answer is this last one, 1 by epsilon 1 plus 1 by epsilon 2 minus 1। So very important। ठीक है, ये आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये पूछा है बीपीएससी में 2019 का क्वेश्चन है। टू लॉन्ग पैरेलल प्लेट्स ऑफ सेम इमिसिबिलिटी। ठीक है, एक प्लेट ये हो गया हम लोगों का, दूसरा प्लेट ये हो गया। ठीक है, दोनों पैरेलल प्लेट है। इमिसिबिलिटी बोल रहा है दोनों का बराबर है। 1, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, है ना। कभी क्या आर मेंटेन एट two long parallel plates of same immiscibility 0.5 are maintained at different temperatures। ठीक है, एक को 1 बॉडी ले लो, दूसरे को 2 बॉडी लेते हैं। ठीक है, इसका इमिसिबिलिटी इतना दे रखा है, इसका 2 ले लो, इसका भी 0.5 दे रखा है। at different temperatures and have radiation heat exchange between them। रेडिएशन हो रहा है, कंडक्शन और कन्वेक्शन नहीं।
The radiation shield of emissivity 0.25 placed in the middle will reduce the radiation heat exchange to। जब इसके बीच में एक रेडिएशन शील्ड यानी कि एक फॉयल, ठीक है, एक कॉपर का या अल्युमिनियम का, जनरली हम लोग एक पत्थर जो होता है, ठीक है, शीट, अल्युमिनियम शीट और कॉपर शीट, ठीक है, शीट कुछ इस तरीके का इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे कि मेरे पास दो क्या है, दो हम लोगों का वन, दिस इज आवर वन प्लेट, दिस इज आवर अनदर टू। नाउ, ठीक है, इस बीच में कुछ हीट Q1 से 2 इंटरचेंज हो रहा है। तो इसके बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, एक हम लोग एक शीट डाल रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ, शील्ड जिसको बोलते हैं, जिसका एमिसिबिलिटी 0.25 दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। इसके कारण जो क्यू हीट जनरेट हो निकलेगा वो कुछ और होगा। तो कितना रिड्यूस हो जा रहा है, इसको बीच में ऐसे इंसर्ट करने पे कितना हीट रिड्यूस हो जा रहा है, तो दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो पहले करते हैं विदाउट शील्ड के लिए, विदाउट शील्ड, फिर विद शील्ड के लिए बाद में करते हैं, ठीक है। हम्म, विदाउट शील्ड, हाँ, देखा जाए तो वो Q1 से 2, ठीक है, नेट हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं ना, ए सिग्मा बी T1 टू द पावर 4 माइनस T2 टू द पावर 4 अपॉन 1 बाई एप्सिलॉन 1 प्लस 1 बाई एप्सिलॉन 2 माइनस 1, ठीक है। कहाँ से निकालें, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन, ये वाला, ये वाला है ना, इस सेम, ठीक है, Q1 टू इंटरचेंज, ये आ गया हमें। हम्म, ओके, तो ये तो आया मेरे पास क्या, विदाउट शेल्ड का। मैं एरिया और सिग्मा बी T1 T2 कुछ भी नहीं दे रखा है, तो भी नहीं करता, सिग्मा बी T1 टू द पावर 4 T2 टू द पावर 4 को एज इट इज पुट कर, 1 अपॉन एप्सिलॉन 1 कितना दे रखा है 0.5, एप्सिलॉन 2 कितना का दे रखा है 0.5 माइनस 1, कितना आ रहा है, ये हो गया 2, है ना, कितना आ रहा है, ए सिग्मा बी T1 टू द पावर 4 माइनस T2 टू द पावर 4, कितना आ रहा है 2 प्लस 2 माइनस 1, ये तो आ रहा है, चार में से एक गया 3, 1/3, है ना, या यू कहूँ, ए सिग्मा बी T1 टू द पावर 4 माइनस T2 टू द पावर 4, है ना, ये 3 आ गया, ये इक्वेशन 1, ये विदाउट शेल्ड की, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट चीज, विथ शेल्ड, है ना, विथ शेल्ड, विथ शेल्ड, ये अब बात, मेरे पास एक बॉडी 1 था, है ना, एक सरफेस क्या है 2 था, है ना, इमिसिबिलिटी इसका 0.5 दे रखा है, इसका इमिसिबिलिटी कितना दे रखा था 2 का 0.5, सेम, है ना, 0.5, ओके। और क्या बोल रहा है कि बीच में एक शेल हम लोग अब डालेंगे, है ना, शेल डालो, चलो डाल देते हैं शेल, हम्म, यहाँ पर एक
शेल डाल देते हैं। तो शेल्ड का इमिसिबिलिटी क्वेश्चन में दे रखा है क्या? शेल्ड ऑफ इमिसिबिलिटी 0.25, ठीक है, शेल्ड ऑफ 0.25 है ना, तो ये शेल्ड हो गया, है ना। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? देखो Q1 से 2 नेट हीट एक्सचेंज, मैं क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ से क्या निकल रहा है, EB1, EB1 है ना, EB1, यहाँ से EB2 इमिसिव पावर ऐसे जा रहा है, EB2 यहाँ से EB1 है ना। तो EB1 माइनस EB अपॉन 1 और 2 के बीच में जितने भी रेसिस्टेंस है, ठीक है, उस सभी को लेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम में रेसिस्टेंस कौन कौन सा था, यहाँ रेसिस्टेंस कौन कौन सा था, ये सरफेस, स्पेस, सरफेस, ये क्या था, EB1 था, ये क्या था, EB, ये क्या था, रेडियोसिटी 1 के, रेडियोसिटी J, ठीक है, J2 ऐसे कर, ठीक है। ये क्या था, सरफेस के लिए 1 माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन A1 एप्सिलॉन 1, ठीक है। ये क्या था, सर्फ स्पेस रेसिस्टेंस 1 बाई A1 F1 से 2, ये क्या था, 1 बाई एप्सिलॉन 2 अपॉन A2 एप्सिलॉन, ठीक है। ये सरफेस, सेम कंसेप्ट विल बी यूजिंग हियर, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग ड्रॉ करते हैं रेसिस्टेंस, ये हो गया सरफेस, फेस, फिर सरफेस, फिर सरफेस, ठीक है, फिर सरफेस, फिर सरफेस, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सा क्या है भाई, B1 से B, देखो ये वाला सरफेस ये हो गया 1 माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन A1 एप्सिलॉन 1, हो गया, काम खत्म, है ना। अब बीच का स्पेस का रेसिस्टेंस क्या होगा, 1 अपॉन A1 F1 से 2 जा रहा है, ठीक है, सेम चलेगा जैसे यहाँ चला था, ठीक है, फर्स्ट केस। ये तो ये वाला हो गया, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, फिर से ये सरफेस पे आ गया, है ना, ये जो शेल्ड है इसका भी तो सरफेस होगा ना, एक इस साइड सरफेस होगा फेस कर रहा, एक इस साइड सरफेस फेस कर रहा, इसीलिए ये भी एक सरफेस है, ये भी एक सरफेस, ये इनसाइड के लिए है यानी कि इसके लिए है, और ये वाला किसके लिए है, ये इस साइड के, धीरे धीरे हम लोग इधर की ओर मूव कर रहे हैं ना, है ना, इसीलिए। तो इस वाले के लिए, इस साइड के लिए क्या होगा, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन ए एस एप्सिलॉन एस, ठीक है, ये इस साइड का हो गया। अब ये वाला के लिए इस साइड का देखेंगे, है ना, इस साइड, तो इसका भी तो वही होगा, होगा। अब बाद में फिर इधर की ओर मूव कर रहे हैं तो स्पेस आ गया, स्पेस का क्या होता है, ये वाला होता है ना। स्पेस के लिए क्या होगा, 1 बाई, यहाँ क्या था, 1 से लेकर 1 2 में नहीं जा रहे थे, 1 से लेकर एस में जा रहे थे, सॉरी 1 से एस में जा रहे थे ना, यहाँ 1 से 2 में जा रहे थे, यहाँ पर 1 से 2 में जा रहे थे, इसीलिए F1 से 2 हो रहा, ठीक है। 1 से निकल रहा है जिस पे स्ट्राइक हो रहा है, 2 पे स्ट्राइक हो रहा था, 2 होगा, यहाँ पर क्या है, 1 से निकल रहा था, इस पे स्ट्राइक हो रहा था, है ना, इस पे, यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे निकल रहा है, 2 पे स्ट्राइक हो रहा है, इससे निकल रहा है, 2 पे स्ट्राइक हो रहा है ना। ए कितना है, कहाँ से निकल रहा है, 2 से निकल रहा है, सॉरी इससे निकल रहा है, ए एस से निकल रहा है,
ठीक है, स्पेस का हो गया। अब ये फिर सरफेस पे, ये वाला सरफेस है ना, 1 - सरफेस क्या है, 2, 2 है ना, 2 ए 2 है ना, एप्सिलॉन। तो इतने सारे रेसिस्टेंस यहाँ आए। फाइनली U12 नेट क्या आ गया, EB1 माइनस EB2, सम ऑफ ऑल द रेसिस्टेंस। ऑल द रेसिस्टेंस क्या है, 1 माइनस ये वाला A1, ये हो गया, प्लस 1/A1 से चला, F1 से S स्ट्राइक हुआ, प्लस 1 माइनस सरफेस का, शेल्ड का, इनर और लेफ्ट साइड का सरफेस, ठीक है। और इस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। अब राइट साइड का सरफेस लेंगे, प्लस प्लस स्पेस आ गया यहाँ पर, स्पेस का रेसिस्टेंस ए एस से चल, ए एस का कहाँ से कहाँ जा रहे थे, एस से 2 जा रहे थे हम लोग, है ना। इससे कहाँ जा रहे थे, इससे हम लोग यहाँ से ऐसे जा रहे थे ना, है ना। हाँ, ये हो गया। एक और सरफेस बचा, ये इनर वाला, है ना। यहाँ के क्लोज हो जाता है 1 माइनस एप्सिलॉन 2 अपॉन A2 एप्सिलॉन S, ठीक है। अब देखो, हियर A1 इक्वल टू AS इक्वल टू A2, सभी का सभी क्या है, एरिया क्या है, बराबर है। तो क्या है, इसको हम लोग 1 से 2, ठीक है। ये क्या है, विदाउट शेल्ड के लिए है, नेट। हम्म, ये क्या क्या कह सकते हैं इसको, सिग्मा बी T1 टू द पावर 4 माइनस T टू द पावर 4, है ना, अपॉन ये एरिया सबसे उठ के ऊपर चला जाएगा, क्या ये क्या आ गया, 1 माइनस एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 1, प्लस 1/F1 से S, प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन S अपॉन एप्सिलॉन S। ये देखो दोनों बराबर है, तो मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, प्लस 1/F S से 2, प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 2, यहाँ 2 होगा, है ना। अब देखो, also if 1 से S इक्वल टू 1 होगा क्या, एंड if S से 2 इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि 1 से जितना भी रेडिएशन निकल रहा है फ्लैट सरफेस 1 से, सभी का सभी 100% S पे स्ट्राइक कर रहा है। सिमिलरली इस सरफेस से जो भी सरफेस से निकल रहा है 2 पर स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। और कहीं तो लॉस नहीं हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। जैसे कि 1 से यहाँ पर ये स्ट्राइक कर रहा है ना, तो यहाँ पे कर सकते हैं कि F1S इज इक्वल टू 1, है ना। उसी तरीके से S से निकल रहा है 2 पे जा रहा है, तो S से निकल रहा है 2 पे जा रहा है, तो ये भी तो 1 होगा। तो से पुट हियर, so we'll put these two here in this, so Q12 net equal to A sigma B T1 to the power 4 minus T to the power 4, है ना। 1 माई अपॉन एप्सिलॉन 1 माइनस 1, इसको ब्रेक किया, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1/एप्सिलॉन S, ठीक है, माइनस 1 इंटू 2, है ना, प्लस 1 अपॉन 1, ठीक है, प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 माइनस 1, ठीक है। ये अब थोड़ा इसका कैलकुलेशन इजी करते हैं, ए सिग्मा बी
t1 to the power 4 minus t2 to the power 4, ठीक है। 1 epsilon 1 minus 1 plus 1 plus twice of epsilon s minus twice plus 1 plus 1 by epsilon 2 minus 1, ये से ये गायब है ना, ये से ये गायब, कितना आ रहा है a सिग्मा b है ना, t1 to the power 4 minus t power 4 है ना, 1 by epsilon 1 कितना आया प्लस 1 by epsilon 2 प्लस ट्वाइस ऑफ epsilon s minus 2 है ना, ये आया। बाकी को एज इट इज रखते हैं, वैल्यू एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 का मालूम है, एप्सिलॉन s का भी मालूम दे रखा है, सिग्मा b t1 to the power 4 minus t power 4, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 का कितना दे रखा है क्वेश्चन में 0.5 और एप्सिलॉन एप्सिलॉन s का दे रखा है 0.25, ठीक है। ये दे रखा है 1 by 0.5 प्लस 1 by 0.5 प्लस 2 twice of 0.25 माइनस 2, ठीक है। एप्सिलॉन a सिग्मा b t1 to the power 4 minus t to the power 4, कितना आ रहा है ट्वाइस हो गया प्लस ट्वाइस हो गया प्लस ये कितना आ गया 4 8 माइनस 2, ठीक है। ये से ये कैंसिल करो, कितना आ रहा है a सिग्मा b t1 to the power 4 minus t to the power 4 अपॉन कितना आ रहा है 10, ठीक है 10। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ है ना, ये 1 आ गया है ना, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2 है ना। नाउ अब आते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 क्यों, ठीक है। रेशियो कैसे किसके बीच में पूछाइए, किसके किसके बीच में पूछा है, radiation shelled of immiscibility 0.25 placed in middle will reduce radiation heat exchange to, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 1 डिवाइडेड बाई 2 करो, ठीक है। Q1 से 2, ये किसका 1 का केस था, Q1 से 2, ठीक है। ये विदाउट शेल्ड था, विदाउट शेल्ड, क्योंकि कंडीशन 1 है। ये विथ शेल्ड है, विथ शेल्ड क्या आ रहा था a सिग्मा b t1 to the power 4 minus t to the power 4 अपॉन 3 था क्या है ना, इस वाले में a सिग्मा b t1 to the power 4 minus t to the power 4 अपॉन 3। दूसरा कंडीशन क्या है ये वाला a सिग्मा b t1 to the power 4 minus t to the power 4 अपॉन बट 10 है ना, ये वाला। तो क्या आ रहा है 10/3 आ रहा है क्या है ना। हमें क्या क्वेश्चन पूछा है Q12 विथ शेल अपॉन Q1 से 2 विदाउट शेल, विदाउट शेल में ज्यादा हीट ट्रांसफर, ठीक है। बीच में यदि कोई शेल लगाते हैं या एक फॉयल लगा देते हैं तो हीट ट्रांसफर रेट रिड्यूस होगा, कितना होगा 3/10। इसका जस्ट क्या करो विदाउट विथ पर करो, इसको जस्ट रेसिप्रोकल करो तो 10/3 है ना। आंसर है क्या, आंसर इज 3/10। So this will be our final answer to this question. This is the how we can
solve the different problems. Okay, so based on the safe factors, okay, and how the space resistance, surface resistance formula we apply. Okay, so these things we understood in this chapter, okay, in part 3. So I request all the viewers, please share these videos with other candidates so that they get aware of and get learn and try to prepare for the competitive and the any placement point of view exams. Okay, so share these lectures with other students. So thank you all.